حاضرین محترم، آج کے جمعۃ المبارک کے موقع پر میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا وہ موضوع وفا کی علامت ہے، اور اولاد میں وفا کیسے آتی ہے یہ سارا منظر اگر سیکھنا ہو اور سمجھنا ہو تو حضرت سیدنا عباس علمدار ان سے اور آپ کے والدین سے بآسانی سیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام، آپ سب یہ بات جانتے ہیں کہ میدان کربلا میں آپ نے 34 سال کی عمر مبارک میں شہادت پائی، اور 34 سالہ شہادت میں جو سب سے بڑی چیز نمایاں نظر آتی ہے وہ آپ کی وفا ہے۔ اب ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا وفادار عباس کیسے بنا کہ بازو کٹ گئے اور وہ مشکیزہ خیموں تک پہنچانے کے لیے آپ اس کو اپنے دانتوں میں لے رہے ہیں اور آخری لمحے تک وفا نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں کسی طرح سیدہ سکینہ تک پانی پہنچا سکوں۔ اب یہ جو وفا کی کیفیت پیدا ہوئی اور اس قدر اپنے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محبت اور مودت کا جذبہ پیدا ہوا، یہ کیسے پیدا ہوا؟ اور آج چونکہ آخری جمعۃ المبارک ہے ماہ محرم 2025 کا، تو میں نے چاہا کہ اس موضوع پر پہلے کبھی ہم نے بات نہیں کی ہے تو کیوں نہ آپ کی سیرت اور کردار میں سے کچھ سیکھا جا سکے۔ حاضرین محترم، یہ سیدنا عباس علمدار، ان کی عظمت اور بلندی کردار سے متعلق میں بات کا آغاز اس جملے سے کر رہا ہوں کہ آپ کی عظمت اور شان کا اندازہ ہم اس بات سے ہی لگا سکتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی امت میں جو 12 امام ہوئے، بولیے کتنے؟ 12 امام، جن میں سے 11 گزر گئے اور 12ویں قرب قیامت حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام وہ آئیں گے۔ وہ جو 11 گزر گئے ان میں سے 3 امام، جن میں پہلے حضرت مولا علی المرتضیٰ، دوسرے یہ ائمہ اہل بیت ہیں، بولیے کیا انہیں کہا جاتا ہے؟ ائمہ اہل بیت علیہم السلام۔ ان میں پہلے حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ، دوسرے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے سیدنا امام حسین علیہ السلام ورضی اللہ عنہ۔ یہ 3 امام، اب میرا پہلا جملہ سنیے کہ سیدنا عباس کون ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو 3 امام مل کر جس کا جھولا جھلائیں، یہ 3 امام مل کر جس کا جھولا جھلائیں اسے سیدنا عباس علمدار کہا جاتا ہے۔ اور سیدنا عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام یہ 26 ہجری میں پیدا ہوئے۔ بولیے کب پیدا ہوئے؟ 26 ہجری میں، یعنی آقا علیہ السلام کے وصال مبارک کے 15 سال بعد پیدا ہوئے، اور انہیں ایک خاص لقب حاصل تھا، اور لقب یہ تھا کہ سیدنا عباس علمدار کو بچپن سے ہی بنو ہاشم کا چاند کہا جاتا تھا۔ بولیے کیا؟ بنو ہاشم کا چاند کہا جاتا تھا۔ حاضرین محترم، اگر ان پڑھوں میں، یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، اگر ان پڑھوں میں کوئی پڑھا لکھا آ جائے تو اس کے لیے اپنا نام بنانا بڑا آسان ہوتا ہے۔ ان پڑھوں میں کوئی پڑھا لکھا آ جائے تو اسے اپنا نام بنانا آسان ہوتا ہے، لیکن اگر سارے ہی پڑھے لکھے ہو تو اسے اپنا نام بنانے میں مشکل پیش آتی ہے۔ حاضرین محترم، اگر کوئی اتنے زیادہ حسین لوگ نہ ہو
ان میں کوئی حسین آ جائے تو اس کا نام بڑا آسانی سے مشہور ہو جاتا ہے، مگر قربان جاؤں بنو ہاشم سارے کا سارا پہلے ہی خوبصورت تھا۔ کیا؟ بنو ہاشم پہلے ہی خوبصورت تھا۔ بھائی کہیں حسن کا بادشاہ حسن تھا، کہیں حسن کا بادشاہ اور حسینوں کا بادشاہ حسین تھا، اسی بنو ہاشم میں کہیں شجاعت کا بادشاہ علی تھا، کہیں اسی بنو ہاشم میں مولی کعبہ عبد المطلب تھے، کہیں اسی بنو ہاشم میں بطحا کا چاند عبد مناف تھا۔ بھائی یہ سارے حسین، سارے حسن کے بادشاہ پہلے سے ہی بنو ہاشم میں تھے۔ عباس آپ کی علم عظمت پر قربان کہ آلریڈی سارے حسین موجود ہیں، ان حسینوں میں عباس آئے تو ان حسینوں میں آپ حسن یعنی 14ویں کا چاند یا بنو عباس اور بنو ہاشم کا چاند کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ میری بات کو سمجھیں، میں نے یہ عرض کیا کہ ان پڑھوں میں پڑھا لکھا آ جائے تو نام بنانا آسان ہے، کم حسن والوں میں حسن والا آ جائے تو نام بنانا آسان ہے، اور اگر پہلے سے ہی سارے حسن والے ہوں تو ان میں نام بنانا مشکل ہوتا ہے۔ مگر عباس علمدار سارے حسینوں میں آئے اور آ کر بنو ہاشم کے چاند کے لقب کے ساتھ مشہور ہو گئے۔ یہ کون عباس ہیں؟ اب میں آگے بات کو بڑھاتا ہوں۔ حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ سب جانتے ہیں کہ ان کی پہلی شادی، آج کا جو میرا گفتگو کا جو پیٹرن ہے وہ تھوڑا مختلف ہے، کیونکہ یہ ساری باتیں تاریخ کی کتابوں سے ہیں اور احادیث کی کتابوں سے لے کر ایک مضمون آپ کے سامنے ایک کہانی کی صورت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ترتیب کے ساتھ، اور بڑی محبت سے سنتے جائیں۔ اب میں نے آپ کو ابتدائی تعارف کروایا کہ 3 امام مل کر جس کا جھولا جھلائیں ہیں اسے عباس کہتے ہیں۔ دوسری بات میں نے یہ عرض کی، بنو ہاشم کا چاند ہونے کا لقب جنہیں عطا ہوا انہیں عباس علمدار کہتے ہیں۔ اب تیسری بات عرض کرنے لگا ہوں کہ حضرت سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ حضرت مولا علی المرتضیٰ کی پہلی شادی ہوئی، پہلی شادی۔ اب حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا وصال ہو گیا، تو جب وصال ہو گیا تو وصال ہو جانے کے 10 سال بعد تک مولا علی المرتضیٰ نے شادی نہیں کی۔ وقت گزرتا گیا، آپ نے یہ سارا وقت تجرد میں گزارا، تنہائی میں گزارا، اور سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے غم میں گزارا۔ جب وقت گزر گیا تو پھر مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ نے اپنے بھائی حضرت عقیل سے بات کی کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے جو بھائی تھے حضرت عقیل، وہ علم الانساب کے ماہر تھے، یعنی خاندانوں کے نسب، حسب نسب، اس کا علم رکھتے تھے۔ انہیں کہا آپ ایک ایسی لڑکی مجھے سجیسٹ کریں، بتائیں، اس کے ساتھ میری شادی کریں جو کیا ہو، جس میں عرب کی شجاعت ہو اور عجم کی شاہی کا مزاج اس کے اندر پایا جاتا ہو، یعنی جو عرب اور عجم کی خوبیوں کی مالک ہو، ایسی لڑکی کا رشتہ۔ اب کیا ہوا، حضرت عقیل نے بات کی کہ پورے عرب میں 2 ہی قبیلے ہیں جو شجاعت میں بڑے مشہور ہیں، ایک قبیلہ قبیلہ بنو ہاشم اور وہ ہم ہیں، اور دوسرا قبیلہ قبیلہ بنی کلاب۔ بولیے کیا؟ بنی کلاب یا بنو کلاب، 2 نام مشہور۔ بنو کلاب ہے دوسرا قبیلہ۔ ہمارے قبیلے میں تو کوئی اور لڑکی اس وقت موجود نہیں ہے، تو پھر میں قبیلہ بنو کلاب کی طرف جاتا ہوں۔ ہوا یہ کہ آپ نے بات چیت ہو گئی اور فرمایا ٹھیک ہے، اگر دوسرا قبیلہ شجاعت میں، بہادری میں
पाकीज़गी और तहारत में दूसरा कबीला अरब में अगर बनु किलाब है तो आप उस तरफ चले जाएं और जाकर मेरे रिश्ते की बात करें। उन्होंने कहा ठीक है, मैं जाता हूं। कबीले का सरदार था हिजाम बिन खालिद बिन रबिया आमिर किलाबी। ये उस कबीला बनु किलाब के हेड हैं, सरदार हैं, जिन्हें हिजाम किलाबी कहते हैं। कहते हैं मैं उनके पास जाऊंगा, उनकी एक लख्ते जिगर है और उनका नाम भी फातिमा है। क्या उनका नाम भी फातिमा है? मैं उनके पास जाऊंगा और जाकर मैं कहूंगा कि हमें रिश्ता चाहिए। अब हुआ क्या, अगला दिन हुआ, हजरत अकील ने अपने बाबा हजरत अबू तालिब, जिन्होंने रिसालत पर पहरा दिया, क्या जिन्होंने रिसालत पर पहरा दिया, वो हजरत अबू तालिब, उनकी दस्तार और कुल्ला पहना, घोड़े पर सवार हुए और चले गए कबीला बनु किलाब में। जब वहां पहुंचे तो कबीला बनु किलाब के सरदार ने, वो कबीला मेहमान नवाजी में बड़ा मशहूर था, उन्होंने क्या किया, 3 दिन तक हजरत अकील की मेहमान नवाजी की। बोलिए कितने दिन? 3 दिन मेहमान नवाजी की। मेहमान नवाजी करने के बाद जब चौथा दिन आया तो पता चल गया कि ये बनु हाशिम का अजीम लख्ते जिगर आया है। और जब ये सारी बात 3 दिनों में मालूमात भी हो गई, मेहमान नवाजी भी हो गई, चौथा दिन जब आया, अब रुखसती का वक्त आया तो उस लम्हे पूछा कि या हजरत आप किस काम के लिए आए थे। उससे पहले इस मौजू पर बात, जब रुखसती का वक्त आया उस लम्हे पूछा। ये मैं आपको मुख्तलिफ किताबों से सारी मेहनत करके जमा करके आपके सामने ये रख रहा हूं। जब हुआ मामला, जब ये बात होने लगी चौथे दिन रुखसती के वक्त, तो कहा मैं इसलिए आया हूं कि हमारे बनु हाशिम में एक नौजवान है जिनका रिश्ता लेने में आपके पास हाजिर हुआ हूं। उन्होंने पूछा कि वो कौन नौजवान है जिसका रिश्ता आप लेने के लिए आए हैं। आपने जवाब दिया, मैं अली इब्ने अबी तालिब का रिश्ता लेने के लिए आया हूं। कुर्बान जाऊं, सुनने की देर थी। हजरत हजाम बिन किलाबी जब उन्होंने नाम सुना, उसी लम्हे कहते हैं उस अली का रिश्ता आया। ये जुमला जरा सुनने वाला है। कहते उस अली का रिश्ता मेरी बेटी के लिए आया है जो खुदा के घर में आया था। क्या जो खुदा, यानी हजरत मौला अली उल मुर्तजा की विलादत कहां हुई? सहने काबा में। कहते हैं उस अली का रिश्ता मेरी बेटी के लिए आया है जिस अली की विलादत खुदा के घर में हुई है। जी, मैं उसी अली का रिश्ता लेकर आपके पास हाजिर हुआ हूं। हाजरीन मोहतरम, जब ये बात होगी ना तो कहते हैं ये सर आंखों पर, इससे बड़ी सादत हमारे लिए और क्या हो सकती है। लेकिन शरीफों का तरीका ये है, मैं जुमला बोल रहा हूं, क्या मैंने लफ्ज बोला? शरीफों का तरीका ये है कि वो पहले अपनी बेटी से भी मशवरा करते हैं। क्या पहले अपनी बेटी से पूछते हैं कि जिसके साथ हम आपकी शादी कर रहे हैं, क्या तुम राजी भी हो या नहीं हो? ये अभी पिछले दिनों में आपने सोशल मीडिया पर सुना देखा होगा कि बलूचिस्तान में एक लड़की ने, नौजवान लड़की ने शादी कर ली और शादी की, बदकारी नहीं की, शादी की, और लड़के और लड़की ने आपस में निकाह कर लिया और जवान थे और 30 साल के करीब उम्र थी उन दोनों की, उससे भी ज्यादा की थी। आप अंदाजा करें कि शादी हो गई, 1.5 साल गुजर गया। कबीले के लोगों ने उनको दावत के नाम पे बुलाया और दावत के नाम पे बुला के उन दोनों को सरेआम गोली मार के शहीद कर दिया और उसकी वीडियो फिर वायरल हो गई और सरदार भी जेल से छूट गया है। आप अंदाजा करें, इस मुल्क में बदकारी कर लें तो उसे महफूज किया जाता है, लेकिन अगर कोई सुन्नत तरीके पर शादी कर ले तो उसे अच्छा, वजह कत्ल करने की, जी इन्होंने पूछा नहीं है हमसे, इन्होंने हमारी मर्जी के खिलाफ शादी की। हालांकि कुरान में शादी के मामले में ऐसी कोई रुकावट नहीं है, बल्कि क्या इरशाद फरमाया, फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा,
जिस औरत को तुम पसंद करते हो उससे तुम शादी कर सकते हो। यानी इस्लाम, भाई शादी जिसको आप पसंद ही नहीं करते आपने उसने शादी क्या करनी। ये उस जमाने की बातें हैं कि जब खातून को सिर्फ घर के कामकाज के लिए रखा जाता था। ये नजरियात हमारे, कुरान कह रहा है जिससे तुम मोहब्बत करते हो, जिसको तुम पसंद करते हो उससे शादी करो। और हम कहते हैं साढ़े को पूछा नहीं। अब उन्होंने क्या किया, सिर्फ इस बुनियाद पर कि हमसे पूछा नहीं और हमारी मर्जी के खिलाफ शादी कर दी है, उन दो लोगों को कत्ल कर दिया, मार दिया और जुल्म किया। कुर्बान जाऊं कि वो इतनी नेक खातून कि जब उसको गोली मारने के लिए लाया गया उसके साथ कुरान था और उसने गोली ऐसे सीने से लगाया हुआ पड़ रही है, वो चेहरे से भी लगती को नेक खातून थी, और उसके खामद को भी मार दिया, उसको भी मार दिया। अच्छा, दोनों को मार के अब जरा उसने जाते हुए एक ही बात कही कि मुझे और कुछ ना करना, मैंने निकाह किया था, कोई गुनाह नहीं किया था। आप अंदाजा करें कि इसको गैरत का मसला बनाकर कत्ल कर दिया। अब जरा इधर देखें कि जब हजरत मौला अली उल मुर्तजा का रिश्ता जा रहा है और किलाबी के पास पहुंचा तो वो बादशाह था, सरदार था, उसने कहा इससे बड़ी मेरे लिए सादत कोई नहीं कि मेरी बेटी, हाय हाय, नाम भी फातिमा और जाएगी भी अली के निकाह में, जो आम नहीं है, जो पहले दिन आया तो अपनी आंख भी खुदा के घर खाना काबा में खोली थी, उस अली के निकाह में जा रही है जिसको घुट्टी भी मुस्तफा ने अपनी जुबान चुसा के अता फरमाई थी। कहते मेरे लिए इससे बड़ी सादत कोई नहीं, लेकिन मैं फिर भी पहले अपनी बेटी से पूछूंगा। अच्छा, गए घर, सामने बेटी की मां है जिनका नामे नामी इसमें गिरामी आता है सुमामा बिनते सुहेल। सुमामा से पूछा कि इस तरीके से अली का रिश्ता आया है। सुनने की देर थी, सुमामा बिनते सुहेल या साहल, ये दोनों नाम आते हैं। वो उसी लम्हे उन्होंने क्या किया, वो सजदाए शुक्र में गुजर गई कि उस अली का रिश्ता आया है जो मोहम्मद मुस्तफा का दामाद है, उस अली का रिश्ता। आप अंदाजा करें। अच्छा, अब ये देखिए, ये वफा है, यानी बाप ने 3 दिन मेहमान नवाजी की इस घराने की, चौथे दिन अदब से पूछा, ओके करके घर गए। घर मां की कैफियत ये है कि सजदे शुक्र अदा करके कह रही, मौला तेरा शुक्र है उस अली का निकाह हमारे घर में जो मोहम्मद मुस्तफा के दामाद है, शुक्र अदा कर रही हैं। जब बात बेटी तक पहुंची तो बेटी ने उसी लम्हे अपनी मां से कहा, हाँ मां बताएं, क्या मैंने आपको नहीं कहा था कि मुझे एक ख्वाब आया है, और जैसे ही ये पैगाम आया है, इस पैगाम ने साबित कर दिया है कि जो मैंने ख्वाब देखा था वो हमेशा सच साबित हो गया। अच्छा, पूछा ख्वाब क्या था, तो सुमामा ने अपने खामद को बताया कि मेरी बेटी ने बताया है, मेरी बेटी ने बताया कि मैंने पिछली रात ख्वाब देखा कि आसमान सर पर है। क्या आसमान? ये नीचे खड़ी है और आसमान से 3 सितारे और एक चांद में फातिमा की गोद में आ गया है। कहती है मैंने ख्वाब देखा है। अब उसी लम्हे हजाम ने, सियाना आदमी था, उसने कहा अच्छा अगर ये ख्वाब देखा है तो फिर इसकी ताबीर ये है कि ये जो आसमान पे छत या ये जो अब उसने अपने सर पर आसमान देखा है, इस आसमान का मतलब कि आज के बाद इसके सर पर अली का साया होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको 4 बेटे अता करेगा, जिनमें से 3 बेटे सितारों की मानेद होंगे, एक बेटा बनु हाशिम का चांद बनकर उभरेगा। निकाह हो गया, घर आ गए, मैं मुख्तसर कर रहा हूं, रिश्ता हो गया, निकाह हो गया, वापस घर पहुंचे तो कुर्बान जाऊं कि मां फातिमा ने, क्या मां फातिमा, ये कौन सी फातिमा है? ये पहले वाली फातिमा नहीं है, ये दूसरी फातिमा है। जब मौला अली उल मुर्तजा ने सैयदा कायनात फातिमा तो ज़हरा के बाद जिनसे निकाह किया, 10 साल के बाद निकाह किया, उनका नाम भी फातिमा है। वाक़या करबला की एक बात कर देना
کہ بازو کٹ گئے، شہید ہو گئے، تو یہ بھائی 34 سال کی عمر تھی حضرت عباس علمدار کی۔ وہ واقعہ تو ہم بیان کرتے اور سنتے ہیں، کاش ہم اس سے پہلے والے 34 سال کے عباس کا بھی جائزہ لیں کہ کسی ایک لمحے بھی اہل پاک کے ساتھ بے وفائی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، یہاں تک بات کلیئر ہوگی آپ کو؟ اب شادی ہو گئی، گھر آئے تو قربان جاؤں آتے ساتھ سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں اس آنے والی فاطمہ کلابی نے قدم رکھا تو بتایا اے فاطمہ، حضرت مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا فاطمہ وہ تمہارا کمرہ ہے، اس کمرے میں چلے جاؤ۔ گئیں اندر، قربان جاؤں آپ اس چارپائی پر نہیں بیٹھی جس چارپائی پر پہلے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا بیٹھتی تھی۔ بیٹا کیوں نہ وفادار ہو، باپ نے وفا نبھائی، ماں نے وفا نبھائی، اب یہ ماں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سے وفا نبھا، کہتی ہے بے ادبی ہو جائے گی، میں بولیے اس چارپائی پر، بیڈ پر نہیں بیٹھوں گی جس بیڈ پر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا بیٹھتی ہیں۔ حاضرین محترم، اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس لمحے پہلے دن سیدہ فاطمہ نے، یہ جو فاطمہ کلابی ہیں، انہوں نے حضرت مولا علی المرتضیٰ سے عرض کیا میں آج آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ کہ کبھی بھی آپ نے مجھے فاطمہ نام سے نہیں بلانا۔ حالانکہ نام ان کا کیا تھا؟ بولیے فاطمہ تھا۔ مجھے فاطمہ نام سے نہیں بلانا۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا، عرض کیا اس لیے کہ آپ مجھے فاطمہ بلائیں گے تو حسنین کریمین کو اپنی اماں فاطمہ یاد آئے گی اور وہ زارو قطار رونے لگ جائیں گے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے فاطمہ کہہ کر نہ بلائیں اور حسنین کریمین کو کبھی تکلیف کا موقع نہ آنے دیا جائے۔ حاضرین محترم، وقت گزرتا گیا، بات کو مختصر کر رہا ہوں۔ حضرت عباس کی ولادت ہو گئی۔ کیا؟ حضرت عباس کی ولادت ہو گئی۔ اب جب ولادت ہوئی حاضرین محترم تو سنیے اور محبت میں ذرا دل میں جگہ دیجئے گا ان جملوں کو۔ ولادت ہو گئی تو حضرت عباس آنکھ نہیں کھول رہے، جیسے حضرت مولا علی المرتضیٰ کی ولادت ہوئی تھی تو آپ نے 3 دن تک آنکھیں نہیں کھولی تھیں۔ کیوں؟ کیونکہ آنکھیں تب کھولنی تھیں جب سامنے چہرہ محمد مصطفیٰ نے آنا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا علیہ السلام تشریف لائے، حضرت مولا علی المرتضیٰ نے آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھول کر پہلا چہرہ جو مولا علی المرتضیٰ نے دیکھا وہ چہرہ وہ تھا جس چہرے کی قسمیں خود خدا قرآن میں اٹھاتا ہے۔ چہرہ مصطفیٰ دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا دیکھ لیا، اب ادھر ہوا آنکھیں نہیں کھول رہے حضرت عباس، سیم بات، آنکھ نہیں کھول رہے۔ مولا علی المرتضیٰ کو بلایا، آپ نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا تو آنکھیں پھر بھی نہیں کھولیں۔ بتایا کہ یہ آنکھیں نہیں کھول رہے، کیا معاملہ ہے؟ فرمایا آپ نے تو آنکھیں تب کھول دی تھیں جب تاجدار کائنات آئے تھے، آج عباس نہیں کھول رہے۔ فرمایا عباس کب کھولیں گے؟ جب وہ آئیں گے جن کے لیے عباس آیا ہے۔ تو اسی لمحے بات نہیں سمجھے، کون کس کے لیے عباس آیا ہے؟ فرمایا یہ اس کے لیے آیا ہے جس کے کربلا کے اندر شہید ہونے کی بشارت محمد مصطفیٰ پہلے عطا فرما گئے۔ اسی لمحے حضرت امام حسین علیہ السلام کو بلایا گیا، آپ نے اپنے ننھے ہاتھوں میں اٹھایا اور قربان جاؤں جب اٹھایا تو ادھر اٹھانے کی دیر تھی، ادھر حضرت عباس نے اپنی آنکھوں کو کھول دیا۔ اب یہ آپ اندازہ کیجئے کہ بچپن سے لگاؤ، اور حضرت مولا علی المرتضیٰ نے بچپن سے خود تیاری کروائی۔ عام طور پر بچپن میں جب کسی کو تلوار چلانا سکھائی جاتی ہے تو بچوں کو پہلے بچوں سے لڑایا جاتا ہے، مگر مولا علی المرتضیٰ فرمایا کرتے تھے میں اپنی ساری شجاعت اور بہادری جس میں منتقل کرنا چاہتا ہوں وہ میرا بیٹا عباس علمدار ہوگا۔ اور اس لیے ثانی علی، بولیے کیا؟ ثانی علی وہ حضرت عباس علمدار کو کہا جاتا ہے۔ اور آپ کا اچھا، اب وہ آپ نے بچوں سے نہیں، بچپن میں
छोटी उम्र में आपने हमेशा बड़ों से लड़ना सिखाया, और उस तलवार और घुड़सवारी और सारे उलूम आपने अता फरमाए। और कुर्बान जाऊं, 2 टाइटल अब्बास अलमदार के, मैं ये उस जिंदगी की बात कर रहा हूं जो करबला से पहले की है। करबला में तो वफा निभाई, मगर आपके पास इल्म और फहम कितना था। हजरत अब्बास अलमदार के 2 टाइटल बड़े मशहूर हुए अरब में। नंबर 1 बाबुल हवाइज। मैं माना बताता हूं, अभी जरा बोलिए क्या? बाबुल हवाइज। बाबुल हवाइज का मतलब है ऐसा घर या ऐसे बंदे का घर जिससे कभी कोई गरीब खाली नहीं जाता। अब सखी मशहूर हुए, बाप की सखावत की खैरात मिली। और दूसरा टाइटल जो अब्बास अलमदार को मिला वो फकीहुल अरब का मिला। बोलिए क्या? फकीहुल अरब, अरब का सबसे बड़ा फकीह आलिम, ये हजरत अब्बास अलमदार को टाइटल मिले। हाजरीन मोहतरम, बात को मुख्तसर करते हुए आगे बढ़ता हूं। अब जब वक्त आ गया, कुर्बान जाऊं, जिंदगी बीती गई 28 रजबुल मुरज्जब, जब ये काफिला, अब मैं बड़ी तेजी के साथ आखिरी हिस्से में दाखिल हो गया हूं। ये हजरत अब्बास अलमदार थे, किस तरीके से शादी हुई, किस तरीके से मां ने, ये जो 34 साला जिंदगी थी, इस जिंदगी में कभी भी याद रख लें, कभी भी हजरत अब्बास अलमदार को आपकी मां फातिमा ने हसनैन करीमैन को भाई नहीं बुलाने दिया। हालांकि दोनों का बाप एक है। मैंने क्या बोला? बाप एक है, और हसनैन करीमैन बाप की तरफ से आपके भाई थे, मगर आपने कभी भी भाई नहीं बुलाने दिया। और एक दिन अब्बास ने अर्ज किया, अम्मा जान, वो मेरे भाई हैं, मेरे और उनके वालिद एक हैं, तो आप हमें भाई क्यों नहीं बुलाने देते? आप हमेशा कहते हैं, आप हमेशा मुझे कहती हैं कि बेटा इनको आपने फकत अपना आका और मौला कहना है। बोलिए क्या? अपना आका और मौला कहना, ऐसा क्यों? हमारा बाप तो एक है। कुर्बान जाऊं, फातिमा किलाबी ने जो जवाब इरशाद फरमाया, फरमाया इस बात में कोई शक नहीं बेटे कि तुम्हारा बाप एक है। हसनैन करीमैन का बाप भी अली और तुम्हारा बाप भी अली, लेकिन याद रखना उनकी फातिमा वो है जो जन्नत की सरदार फातिमा है। नाम भी एक है मगर वो आकाजादी हैं। मैं हूं तो फातिमा मगर हूं गुलाम जादी। बोलिए क्या हूं मैं? गुलाम जादी। अब ये देखिए, भाई नहीं बुलाने दिया 34 साल की उम्र तक, और अदब और मोहब्बत और वफा सिखाई। कुर्बान जाऊं, आगे बढ़ते हैं। इस ये वफा 28 रजबुल मुरज्जब को जब काफिला मदीना से रवाना हुआ, और आप जानते हैं मदीना से रवाना हुआ और फिर मुहर्रमुल हराम में 9-10 मुहर्रम, 10 मुहर्रमुल हराम को शहादतें हो रही हैं। इतने सारे अरसे में जब रवाना होने लगा ना, तो जो 7 खवातीन थी, 10, 12 या 20 तक का आदद आता है, उन खवातीन ने सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से अर्ज़ किया कि हम साथ तो जा रहे हैं मगर हालात भी बड़े मुश्किल हैं, तो हमारे पर्दे की हिफाजत कौन करेगा? क्या हमारे पर्दे की हिफाजत कौन करेगा? सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने उन सारी अज़वाज को और बीवियों को और ख़वातीन को बात की। फरमाया आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जब तक अब्बास अलम लेकर हमारे काफिले की क़यादत कर रहा है, तुम्हारे पर्दे की हिफाजत होती रहेगी। ये जुर्रत और शुजात का आलम था। और फिर आपने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना अलम वो किसके हाथ में थमाया? हजरत अब्बास। और ये अलम काफिले के आगे आगे चलता। और याद रख लें, तारीख में ये पहले अलम बरदार नहीं है। अलम कहते हैं झंडा, झंडे को उठाने वाले। तारीख इंसानी में सबसे पहला अलम वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया और चलाया था। जब आप अपने भांजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम की मदद के लिए निकले, तो आपने अपना ही रुमाल एक स्टिक पर लगाया और बताया हाजा अलमी, ये मेरा झंडा है। तारीख इंसानी में
काफले की सूरत में जो शख्सियत झंडा लेके निकली और इंसानी तारीख में जो पहले अलंबरदार हुए वो कौन हुए? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। मगर कुर्बान जाऊं, एक बात आपके ज़ौक़ के लिए अर्ज़ करता हूं, मेरे ज़हन में अभी आई और आप भी इस बात की तायीद करेंगे कि तारीख़ इंसानी में बड़े बड़े सहाबा अलंबरदार हुए। क्या बड़े बड़े? फतह मक्का के मौका पर 3 अलंबरदार थे, दाईं तरफ, बाईं तरफ, दरमियान में 3 झंडे जा रहे थे। और भाई और कोई ना हो तो आपको वो वाक़या तो याद ही होगा कि जब ग़ज़वा खैबर आया तो 39 दिन तक आका अलैहिस्सलाम एक दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक को अलंबरदार बना के भेजा, हज़रत उमर फारूक को अलंबरदार बना के भेजा। 39 दिन सहाबा किराम अलम लेके जाते रहे, लेकिन फतह कला खैबर नहीं हो रहा था। फरमाया 40वां दिन आ गया है, बुखारी की रिवायत पढ़ रहा हूं, 40वां दिन आ गया है, आज मैं, या मेरी बात नोट कर लो, कल मैं उसे अलम थमाऊंगा जिससे मैं भी मोहब्बत करता है, मेरा रब भी मोहब्बत करता है। और फिर क्या हुआ? अगले दिन अलम किसके हाथ में थमाया गया? मौला अली के हाथ में। अच्छा मुझे बताओ, हम में से कोई कहता है अली अलंबरदार? बोलिए, कोई कहता है इब्राहीम अलंबरदार? कोई ये कहता है? हाज़रीन मोहतरम, तारीख में देखिए सहाबा किराम ने अलम उठाए, हजरत जाफर ने अलम उठाया, हजरत खालिद बिन वलीद ने अलम उठाया, हजरत मुसअब बिन उमैर ने अलम उठाया, हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने उठाया, हजरत उसामा ने उठाया। तारीख में बड़े बड़े सहाबा ने अलम उठाया, लेकिन कोई भी उन्हें अलंबरदार नहीं कहता। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं, ये कैसा अलम उठाया है अब्बास ने कि आप चौक चौराहे में नाम अब्बास भी ना लिखें, सिर्फ लिख दें अलंबरदार। क्या लिख दें? सिर्फ अलमदार, सिर्फ इतना लिख दें। तो मुझे आप बताइए, आपके ज़हन में पहला और आखिरी नाम किसका जाता है? बोलिए, हजरत अब्बास का। फर्क समझाता हूं क्यों? इसलिए कि तारीख में जिसने भी अलम उठाया उसने अपने हाथों से उठाया। बोलिए, क्या? अपने हाथों से उठाया। और अब्बास वो अलमदार है कि जब बाजू भी कट गए थे तो अपने दांतों से भी अलम को उठा के अलम की हिफाजत कर रहे थे। चूंकि अलम उठाने का अंदाज जुदा था, इसलिए अल्लाह ने शोहरत भी अब्बास को जुदा अता फरमा दी। हाज़रीन मोहतरम, वक्त खत्म हो रहा है, आइए मैं वफा की एक झलक बात करके बात को ख़त्म करता हूं। और वो क्या कि जब शबे आशूर आ गई, क्या शबे यानी 10 मुहर्रम की रात आ गई और आखिरी रात थी, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या किया? मारूफ वाक़या है, मगर इसमें से जो आपको नुक्ता अर्ज करना चाहता हूं वो ये कि सब असहाब को जमा किया और जमा करके आपने अब्बास को भी बुलाया और बाकी जो 71 असहाब थे उनको भी बुलाया और बुला के कहा, मेरे सामने सारे बैठे हो, सुन लो, नहनु नक़्तुलु गदन, मुझे पता है कि कल हमने शहीद हो जाना है, कत्ल कर दिए जाएंगे। मैं ये चाहता हूं कि यजीद और जो मामला चल रहा है वो मेरे दरमियान है, आपका उसमें कोई मामला, आप वोट देना चाहें तो भी आज़ाद हैं। हुसैन बदबख्त लाइन और जहन्नमी को वोट नहीं देगा, मैं नहीं वोट दे सकता। मैं आपको इजाज़त देता हूं, आप सारे चले जाए, वो सामने सवारियां खड़ी हैं, जिस मुल्क में जाना चाहें आप चले जाएं, जिस तरफ जाना चाहें आप चले जाएं, आप आज़ाद हैं। लेकिन कोई एक भी उठा, आपने उसी लम्हे हज़रत अब्बास को फरमाया, अब्बास ये जो चिराग जल रहा है ना, इसको बुझा दो, चिराग को बुझा दो। हो सकता है ये इसलिए उठ के ना जा रहे हों कि इन्हें शर्मिंदगी हो कि हम साथ आए थे और अब हम जा रहे हैं। चिराग बुझा दिया, जब दोबारा जलाया देखा तो कोई एक भी नहीं गया था। लेकिन कुर्बान जाऊं, जब वो पहली दफ़ा बंद हुआ ना चिराग और जब जलाने की बात की तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बास चिराग जलाओ। देखा बंदे गिने पूरे, दूसरी मर्तबा ऐसे किया, आपने फरमाया
परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको यह डर है कि आज हम चले गए तो हमें जन्नत नहीं मिलेगी, फरमाया ये हुसैन जन्नत का सरदार सामने बैठा हुआ है, मैं तुम्हें टिकट देता हूं, गारंटी देता हूं, अपने नाना से शफात करवा के अपने साथ जन्नत में जिसने जाना है वो चला जाए। चिराग बुझ गया। फिर जब जलाना चाहा थोड़ी देर के बाद तो फरमाया अब्बास चिराग जलाओ। ये बात बड़ी तवज्जो तलब है। चिराग जलाओ। जलाया, फिर देखा कोई एक भी उठ के, तीसरी मर्तबा फिर जलाने की बारी आई तो फरमाया अब्बास चिराग जलाओ। जब चलाया देखा फिर भी कोई उठ के नहीं। अब यहां मैं एक बात आपकी तवज्जो जरा मेरी तरफ कीजिए और बात को समझिए कि अब्बास की वफा कैसी है। 3 दफा चिराग जलाने के लिए बुलाया किसको है? ऊंचा ऊंचा बोलिए, अब्बास को। तो मुझे आप बताइए, जब कह रहे थे कि जिसने जाना है चला जाए, तो क्या उनमें अब्बास शामिल नहीं थे? कुर्बान जाऊं, अगर अंधेरे में कोई उठ के जाना चाहता तो सारे जा सकते थे, अब्बास भी जा सकते थे। और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तो पता नहीं था ना कि अब्बास गया है या नहीं गया, मगर तीनों बार अब्बास को बुला रहे हैं, इसलिए कि हुसैन को अब्बास की वफा पर एतमाद इतना था कि सारी दुनिया छोड़ के जा सकती है, मेरा अब्बास मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, इसलिए बार बार अब्बास को बुला रहे। 10 मुहर्रमुल हराम आ गया। हाजरीन मोहतरम, सारी शहादतें हो गईं, सिर्फ 3 अफराद बाकी बच गए, जिनमें हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, फिर हजरत इमाम अली असगर और हजरत अब्बास, और चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो मैदान कारज़ार की तरफ नहीं जाने दिया गया, जिनको हिकमत के तहत। उस लम्हे आप बार बार इजाजत मांग रहे हैं कि बाप कि भाई मुझे भी जाने दे, मुझे भी जाने दे, या इमाम मुझे भी जाने दे। सारे चले गए, मगर आखिरी लम्हे तक हर एक को इजाजत मिलती रही, हजरत अब्बास अलमदार को आपने इजाजत नहीं दी। दोस्तों, ये वाकयात नहीं है, ये सीरत है। बोलो क्या है? सीरत है। और औलिया की, सोलहा की, नेक बंदों की सीरत को बयान करना ये खुद खुदा की सुन्नत है। अल्लाह के नेक बंदों की सीरत कुरान में वाकयात भरे पड़े। हाजरीन मोहतरम, मैं बात को खत्म कर रहा हूं। आपने ये बात सुन रखी है कि क्या हुआ। अब जब बिल्कुल आखिरी वक्त आया तो आपने खुद इजाजत नहीं दी, मगर सैयदा सुकैना जो बिल्कुल नन्ही मासूम है वो आई और आकर कहने लगी, चाचा जान, हमें अपनी प्यास की फिक्र नहीं है, मगर 6 माह का अली असगर है जो बिलक रहा है, पानी चाहिए। आपने किस्से मुख्तसर वो पकड़ा, मशकीज़ा पकड़ा, पानी लेने गए, और फिर आप आगे सारी बात जानते हैं कि पानी में मौजूद थे, मगर वहां भी वफा निभा रहे थे कि उस लम्हे तक अब्बास पानी नहीं पी सकता जब तक मेरा भाई अली असगर पानी नहीं पी लेता, जब तक सैयदा ज़ैनब फूफी जान नहीं पी लेती, जब तक अली असगर नहीं पी लेते। कुर्बान जाऊं, ये वफा निभाई जा रही है। और ज़रा तवज्जो से सुनिए कि जब शहादत का पता चला कि मेरे भाई जो पानी लेने के लिए गए थे और वापसी पर बाजू भी काट दिए गए हैं, मैं उस वादी में नहीं जाना चाहता, डिटेल में नहीं जाना चाहता कि फिर वक्त भी लगेगा और फिर हम किसी और दुनिया में, मैं सिर्फ शॉर्ट में, और इतना हमारे अंदर हौसला भी नहीं है कि हम उनकी शहादतों को बयान या सुन सकें। वो ही थे वफा के पैकर जो कर गए। हाजरीन मोहतरम, अब आप ज़रा तवज्जो कीजिए कि सदमा कितना पहुंचा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। आप अपनी तलवार पे ऐसे सर रख के खेमे में बैठे हैं कि अभी मेरा भाई पानी लेकर आ रहा है, मगर पानी लेकर अब्बास तो ना पहुंचे, मगर थोड़ी देर के बाद अब्बास की आवाज़ पहुंची और आवाज़ आई, आका आके मुझे संभालिए। जब ये आवाज़ पहुंची तो आपका सर अनवर ऐसे तलवार पे ऐसे नीचे पाँव के बल आप बैठे हुए थे और ऐसे तलवार पे जोर डालते हुए उठे और उठते हुए एक जुमला बोला कि 71-69 के करीब मेरे रफ़ाक़ा शहीद हो गए, लेकिन हुसैन को कुछ नहीं हुआ। ए अब्बास, अब तेरा आखिरी वक्त आया है और तेरी आवाज़ पहुंची है, तो मैं ये कहता हूं कि अब हुसैन की कमर टूट गई है।
ये वही सदमा था कि जब अली अकबर की शहादत हुई तो 56 बरस की उम्र में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारक में एक बाल भी सफेद नहीं था। जब बेटे की लाश उठा के ला के रखी तो सिर्फ इतनी देर में इतना सदमा पहुंचा कि एक बाल भी दाढ़ी में स्याह नहीं बचा था, सारी दाढ़ी सफेद हो गई थी। हाज़रीन मोहतरम, ये वो कुर्बानियां हैं जो दी गई। अब बताना ये चाहता हूं कि ये वफा जो करबला में निभाई गई कि बाजू कट गए, मशकीज़ा दांतों में है, बाजू कट गए, मशकीज़े की को खेमों तक पहुंचाने की जिद्दोजहद हो रही है। कभी जिंदगी में भाई कह के नहीं पुकारा, हमेशा आका और मौला कह के पुकारा, हमेशा गरीबों की मदद की है, दस्तगीरी की है, वफा के पैकर बनकर रहे हैं। ये सारी वफा आई कहां से? ये मेरे पिछले 4-5 जुमों का आखिरी मैसेज है मुहर्रमुल हराम का। फिर अल्लाह को मंजूर हुआ तो इस मौजू पर अगले साल बात होगी, लेकिन अब मैं यहां जो अर्ज करना चाहता हूं, ये सारी बात इसलिए सिखाई कि ये अब्बास में सारी वफा सिर्फ और सिर्फ उनकी मां की वजह से आई। बोलो किसकी वजह से आई? मां का नाम भी फातिमा था, मां भी मौला अलीउल मुर्तजा की ही ज़ौजा थी, मगर स्टेटस सारा कुछ होने के बावजूद कभी स्टेटस को नहीं देखा, बल्कि ये देखा कि पहली वाली फातिमा सरदार है और मैं उनकी गुलाम। तो जब माँ में वफा ये आ जाए फिर वो औलाद में हर सूरत ट्रांसफ़र भी बोलिए होती है। आज हम अहद करें इस आखिरी जुमातुल मुबारक के मौका पर कि हम पहले खुद अहले बैत अतहार के वफा के पैकर बने। ऊंचा बोलिए, क्या खुद वफा के पैकर बने? जब वालिदैन वफा के पैकर बन जाएंगे तो फिर औलाद में ये मोहब्बत खुद ब खुद ट्रांसफर हो जाएगी। ताजदार कायनात ने इरशाद फरमाया, लोगों 3 तरह की मोहब्बतें अपनी औलाद को लाजमी सिखाना। या रसूल अल्लाह कौन सी? फरमाया पहली मोहब्बत मेरे कुरान की सिखाना, दूसरी मोहब्बत अपने नबी की सिखाना, और तीसरी मोहब्बत अपने नबी की पाक आल की सिखाना। ये आका अलैहिस्सलाम ने हमें तालीम इरशाद फरमाई। इसलिए अहले सुन्नत का अकीदा है औलिया का एहतराम, सहाबा किराम का एहतराम, और आले पाक का एहतराम, और ताजदार कायनात का एहतराम, और ये सारे एहतराम मिलकर हमें किसके करीब कर देते हैं? ऊंचा बोलिए, अल्लाह के करीब करते हैं। दोस्तों, ये दीन अगर महफूज है तो ये महफूज भी खानवादा रसूल की इस कुर्बानी के बायस है। अगर नमाजें आबाद हैं, मसाजिद आबाद हैं, मुहर्रम साल की सारी इबादतें अगर आबाद हैं तो ये सदका है कुर्बानी हुसैन का। इसलिए ख्वाजा अजमेर ने कहा, मैं आज एक और कलाम लेके आया था, चलो मैं ये फिर कभी कर दूंगा। वो कलाम आपको उसका एक शेर सुनाना चाहता हूँ और आपने मेरे साथ मिलकर पढ़ लेना है। मैंने टाइम तो उसके लिए 10 मिनट रखा था मगर है नहीं है, सिर्फ एक शेर आपको उसका सुनाता हूँ तर्ज में, और इसी के साथ ही हमारा ये मुहर्रमुल हराम की सारी बात मुकम्मल हो जाएगी। और बड़ा खूबसूरत उसने कलाम लिखा, कहता है कि एहसान मानता है ज़माना हुसैन का, मिलके पढ़ लें, एहसान मानता है ज़माना। भाई मानते हैं? बोलिए ना, ये आखिरी लम्हात हैं और आज आखिरी दिन है मुहर्रम का। मैंने आपको पिछले जब से यहां खिदमत कर रहा हूं आपकी, तो यही मैसेज दे रहा हूं कि भाई किसी में कोई फर्क ना करें, कोई बदअकीदगी ना आने दें। सहाबा की अज़मत की बात आए तो गज वज के करें, अहले बैत की बात आए तो कोई डंडी न मारे। ये ईमान है, जरा मोहब्बत से पढ़ लें। हम भी मानते हैं कि एहसान मानता है ज़माना, हाँ एहसान मानता है ज़माना, एहसान मानता है
زمانہ حسین کا حور و ملک نے گایا ترانہ حسین. اور آخری شعر میں نے کہا ایک ہی پڑھنا ہے، بس وہی عرض کر دیتا ہوں. 4-5 لکھے تھے، ایک ہی شعر سنیے کہ جس کے قصیدے آیا تطہیر نے پڑھے، جس کے قصیدے آیا تطہیر نے پڑھے، ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا، ایسا بنایا رب نے نہ حسین کا، احسان مانتا ہے زمانہ. حسینیت حسینیت. اللہ رب العزت ان محبتوں کے دامن میں ہمیں زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.